نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى في مقام آخر: ألا له الخلق والأمر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے اسے دو بڑے حصوں میں تقسیم فرمایا: عالم خلق اور عالم امر. عرش اور عرش سے نیچے جو بھی جہان ہے اس کو عالم خلق کہا جاتا ہے. کرسی اور کرسی سے اوپر جو کائنات ہے اس کو عالم امر کہا جاتا ہے. عرش اور عرش سے نیچے کی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً پیدا فرمایا. زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر 2 دن میں آسمان وجود میں آئے، پھر دوبارہ 2 دن میں زمین کے اندر منافع رکھے، مختلف اشیاء ودیعت کر دی. تو یہ تدریجاً وجود میں آ چکا ہے. اور عالم امر لفظ کن کے ساتھ وجود میں آ چکا ہے. چونکہ کن امر کا صیغہ ہے اس لیے اس کائنات کو عالم امر کہا جاتا ہے کہ لفظ کن کے ساتھ وہ پوری کائنات وجود میں آ چکی ہے. اس عالم خلق کی اپنی ایک دنیا ہے، اپنا ایک جہان ہے، اور عالم امر اپنا ایک جہان ہے. عالم خلق میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس کی اساس اور بنیاد مادہ ہے. مادے سے گویا کہ سب کچھ کو وجود ملا ہے، اور آگ، پانی، مٹی، ہوا اس مادے کی بنیادی عناصر ہیں. اور عالم امر کی جو اصل اساس اور بنیاد ہے وہ روح ہے. تو عالم خلق کی اساس مادہ ہے، عالم امر کی اساس اور بنیاد روح ہے. گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم خلق میں مادہ اور عالم امر میں روح یہ 2 قوتیں ہیں، اور یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتی ہیں. روح کی قوت چاہتی ہے کہ غلبہ مجھے حاصل ہو جائے، جبکہ مادہ اپنی خاصیات کی بنیاد پہ اپنا غلبہ چاہتا ہے. اور یہ جو جنگ چل رہی ہے عالم روح اور مادے کی، یہ ایک تو انسان کے اپنے اندر یہ کشمکش چل رہی ہے، اور ایک ہمیں خارجی دنیا میں روحانیت اور مادیت کی کشمکش چل رہی ہے. انسان کے اپنے اندر جسم کی کچھ خاصیات ہیں، جسم ان خاصیات کی بنیاد پہ غلبہ چاہتا ہے. روح کی اپنی خاصیات ہیں، روح ان خاصیات کی بنیاد پہ غلبہ چاہتی ہے. اور خارجی دنیا میں ہمیں روحانیت اور مادیت کی کشمکش نظر آتی ہے. تو انسانی جسم کے اندر روح کو غلبہ کیسے حاصل ہو؟ روح چونکہ خیر کا منبع ہے، انسان کی جسم میں خیر آ جائے، اور پھر اس پوری کائنات کے اندر، اس پورے عالم خلق کے اندر وہی خیر پھیل جائے. اس کے لیے پھر تصوف اور سلوک
का तरीक इख्तियार करना पड़ता है। तसव्वुफ और सलूक में इंसान के अंदर भी रूह को गलबा दिया जाता है और खारजी दुनिया में भी रूहानियत को मादियत पर गलबा दिलाया जाता है। और फिर ये कश्मकश जो हमें इस वक्त नजर आती है अपनी जात में और फिर इस जहान में, और फिर इसका आखिरी जो मारिका बर्पा है दज्जाल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मारिके की सूरत में, इस हवाले से तसव्वुफ और सलूक और खानकाहों का किरदार किया है और इस सिलसिले में खानकाहों की तरफ मुराजात कितनी जरूरी है, ये बात इस मुख्तसर नशिस्त में आपसे अर्ज करनी है। आप हजरात तवज्जो फरमाएंगे तो उम्मीद की जाती है कि बात समझ में आ जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला ने इंसान को दो चीजों से मुरक्कब बनाया है। एक इसका जिस्म है जो जाहिरी ढांचा है, आग, पानी, मिट्टी और हवा का मुरक्कब है, जिसको हम जाहिर में गोश्त, पोस्त और हड्डी कह सकते हैं। और एक इसी इंसान के अंदर रूह है। जिस्म मादे से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ, और रूह आलम अमर से आई हुई चीज है। यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, ये आपसे पूछते हैं कि रूह क्या चीज है, आप कह दें कि रूह तो रब के अमर से वजूद में आने वाली चीज है, आलम अमर से आई हुई चीज है। अब आमतौर पे होता यह है कि लोग जिस्म को ज्यादा अहम समझते हैं, जिस्म को तवज्जो भी देते हैं, जिस्म की जरूरियात को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि किसी भी इंसान का शरफ, एजाज, आला मरातिब और मनासिब उसकी जिस्म से वाबस्ता नहीं है, उसकी रूह से वाबस्ता है। अब देखें, जब तक बंदा जिंदा होता है तो लोग कहते हैं ये चौधरी साहब है, ये वजीर साहब हैं, ये एमपीए साहब हैं, ये ब्यूरोक्रेट साहब हैं, ये डीपीओ हैं और डीसी हैं, और यानी बड़े बड़े मनासिब और बड़े बड़े मरातिब को उस बंदे की तरफ मंसूब किया जाता है। लेकिन जो ही ये रूह निकल जाती है तो फिर कोई नहीं कहता कि अब डीसी साहब को गुस्ल दे दो, अब डीसी साहब का जनाजा तैयार कर लो, अब डीसी साहब का जनाजा पढ़ो, बल्कि हर बंदा कहते भाई मैयत को गुस्ल दे दो, मैयत को कफन पहना दो, मैयत का जनाजा पढ़ते हैं, मैयत का जनाजा उठाओ। गोया कि वो जितने मनासिब थे, जो शरफ और एजाजात उसको हासिल थे, वो सारे के सारे कल अदम हो गए हैं। बंदा तो वही है, जिस्म तो वही है, गोश्त, पोस्त और हड्डी तो वही है। कमी किस चीज की आ चुकी है कि अब वो डीसी साहब से मैयत बन गया, अब वो वजीर साहब से लाश बन गया। जी हां, उसके अंदर से रूह निकल गई है। गोया कि उसका सारा शरफ और एजाज रूह की वजह से था। मैं अगर सादा अल्फाज में समझाना चाहूं कि जिस्म और रूह के दरमियान क्या निस्बत है, तो यूं समझ लें कि रूह सवारी है और जिस्म सवार है। रूह सवारी है और जिस्म सवार है। अगर सवारी सेहतमंद होती है, तनोमंद होती है, दुरुस्त होती है, तो वो मंजिल मकसूद पे पहुंच सकती है। लेकिन शर्त यह है कि सवार भी सेहतमंद हो, मजबूत हो और सवारी को काबू करने वाला हो। अगर बिलफर्ज घोड़े पे बंदा सवार हो जाए और घोड़ा तो बड़ा सेहतमंद, मोटा, ताजा, फरवा है, लेकिन सवार बेचारा बिल्कुल नहीफ और कमजोर है, तो सवार उसको चलाने की कोशिश करेगा, घोड़ा काबू नहीं होगा, तो घोड़ा सवार को मंजिल मकसूद पे पहुंचाने की बजाय किसी गहरी खाई में फेंक देगा, उसको हलाकत के घड़े में डाल देगा। अगर हम जिस्म पर मेहनत करते हैं कि जिस्म सेहतमंद हो, जिस्म कवी हो, जिस्म दुरुस्त हो,
तो वहां रूह पर भी मेहनत करनी जरूरी है, वरना मंजिल पे पहुंचना दुश्वार हो जाएगा। अब हम में से हर बंदा ये चाहता है कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करे। चाहत के बावजूद निगाहें बेकाबू हैं। वजह क्या है कि अंदर की रूह चाहती है कि आंख कंट्रोल में आ जाए, लेकिन रूह बेचारी कमजोर है, वो आंख को चाहत के बावजूद कंट्रोल नहीं कर सकती। रूह कमजोर है, वो चाहत के बावजूद जबान को काबू नहीं कर सकती। रूह कमजोर है, वो चाहत के बावजूद बंदे को मस्जिद की तरफ रवाना नहीं कर सकती। जिस्म तो बड़ा तनोमंद है, सेहतमंद है, और जिस्म चाहे तो छलांगे लगाता हुआ मस्जिद में पहुंच जाए। रूह चाहती भी है, लेकिन रूह कमजोर है, वो बंदे को मंजिल पे पहुंचा नहीं सकती। हक ये बनता है कि अगर हम जिस्म पर मेहनत करते हैं तो उसी तरह हम रूह पर भी मेहनत करें, ताकि रूह जिस्म के ऊपर गालिब रहे, जिस्म ताबिअ बने, रूह मतबू बने, जिस्म महकूम बन जाए, रूह हाकिम बन जाए। फिर बंदे के लिए जिस्म को अल्लाह की बंदगी पे लाना कोई दुश्वार नहीं होता। और ये बात याद रखें कि जिस्म मिट्टी से बना है और इसकी तमाम जरूरियात मिट्टी से पूरी होती हैं। ग़िज़ा मिट्टी से, पानी जो मशरूब है वो मिट्टी से, बीमार हो जाए तो दवा बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पे मिट्टी से। जिस्म की सफाई सुथराई के लिए हम जो कुछ कोशिशें करते हैं बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पे मिट्टी से पूरी होती हैं। हमें गर्मी सर्दी से बचाव के लिए लिबास चाहिए, मिट्टी से। हमें रहने के लिए मकान चाहिए, तो मिट्टी से। जिस्म मिट्टी से बना हुआ और इसकी तमाम जरूरियात मिट्टी से पूरी होती हैं, जबकि रूह आलम अमर से आई हुई चीज है। रूह बीमार हो जाती है तो दवा आलम अमर से, रूह कमजोर हो जाती है तो सेहत बख्श ग़िज़ा ये आलम अमर से। जिस्म रूह मैली हो जाती है तो सफाई सुथराई के लिए इंतजाम आलम अमर से। गोया कि रूह की तमाम जरूरियात आलम अमर से पूरी होती हैं। तसव्वुफ और सलूक के सिलसिले में बाकायदा मशाइख सूफिया रूह पर मेहनत करते हैं कि रूह ठीक हो जाए, रूह सेहतमंद रहे। अब इस पर मेहनत किस तरह की जाती है? तो मेरे भाइयों, समझ लें कि जिस तरह ये इंसानी जिस्म है, और इंसानी जिस्म मुख्तलिफ आज़ा पर मुश्तमिल है। ये इंसान के हाथ हैं, और ये आंखें हैं, ये नाक है, और कान है, और फिर कुछ अंदरूनी आज़ा हैं, ये दिल है, और गुर्दे है, और जिगर है, और फेफड़े हैं, और मैदा है। ये कुछ जाहिरी आज़ा हैं, कुछ बातनी आज़ा हैं। इसी तरह रूह भी जो जिस्म के अंदर हुलूल कर चुकी है, इसके भी कुछ आज़ा हैं, लेकिन जिस्म के आज़ा खफीफ हैं, हमें नजर आते हैं, हम हाथों से उसको मस कर सकते हैं, जबकि रूह के आज़ा लतीफ हैं। जिस्म के आज़ा कसीफ हैं और रूह के आज़ा लतीफ हैं, इसलिए रूह के आज़ा को लताइफ कहा जाता है। ये जो हम कहते हैं कि ये 5 लताइफ हैं आलम अमर के, ये हकीकत में रूह के आज़ा हैं, लेकिन चूंकि रूह लतीफ चीज है इसलिए इनको लताइफ कहा जाता है। अगली बात सुने कि जिस्म के आज़ा तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ आज़ा को आज़ाए रईसा कहा जाता है। आज़ाए रईसा वो होते हैं कि जिनके बिगाड़ से बंदी की मौत वाक़या हो जाती है, जिनके बिगाड़ के होते हुए बंदा जिंदा नहीं रह सकता। मसलन दिल है, जिगर है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, ये वो आज़ाए रईसा हैं। दिमाग है, ये वो आज़ाए रईसा हैं कि अगर इनमें कोई फतूर आ जाए तो बंदा जिंदा नहीं रह सकता। खुदा न खास्ता बंदे का बाजू कट जाए तो बंदा फिर भी जिंदा होगा, टांग कट जाए, कान कट जाए, बंदा फिर भी जिंदा होगा। लेकिन आज़ाए रईसा के में खलल आने की वजह से बंदा जिंदा नहीं रहता। इसी तरीके से रूह के आज़ा तो बहुत सारे हैं, लेकिन 5 आज़ा ऐसे हैं जिनको आज़ाए रईसा कहा जाता है। जिस तरह हकीम हजरात, अतिबा हजरात ये आज़ाए रईसा का इलाज करते हैं, जिस्म के आज़ाए रईसा का, इसी तरीके से फिर मशाइख को पता है
کہ روح کے 5 اعضاء ایسے ہیں جن کو اعضائے رئیسہ ہم کہہ سکتے ہیں. اگر ان پر محنت کی جائے، ان کو بنایا جائے تو پوری روح تنومند اور صحت مند ہو جاتی ہے. اور جب روح صحت مند ہو جاتی ہے تو پھر جسم کے اوپر اس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، پھر اپنی مرضی کے مطابق جسم کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ جو 5 اعضائے رئیسہ ہیں، یہ قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، اس کو ہم 5 لطائف کہہ سکتے ہیں. یہ عالم امر کے لطائف ہیں، یہ روح کے 5 اعضاء کہلائے جا سکتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ عالم خلق اور عالم امر کے درمیان کشمکش ہے، اسی طرح انسان کی جسم کے اندر جو 5 لطائف ہیں جن کو عالم امر کے لطائف کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں 5 عالم خلق کے لطائف ہیں. چنانچہ نفس عالم خلق کا لطیفہ ہے، اور لطیفہ قالبیہ یہ بھی عالم خلق کا لطیفہ ہے. اور لطیفہ قالبیہ، قالب کہتے ہیں ڈھانچے کو، اور چونکہ ڈھانچہ 4 امور سے مرکب ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، اس لیے لطیفہ قالبیہ حقیقت میں 4 لطائف کا مجموعہ ہے. لطیفہ قالبیہ 4 لطائف کا مجموعہ ہے. تو ایک تو انسان کا لطیفہ نفس ہے اور ایک لطیفہ قالبیہ ہے. لطیفہ قالبیہ چونکہ 4 لطائف کا مجموعہ ہے، اس لیے یہ مل کے 5 لطائف بن جاتے ہیں. تو 5 لطائف عالم امر کے ہیں اور 5 لطائف عالم خلق کے ہیں، اور ان کے درمیان کشمکش چلتی ہے. اگر عالم خلق کا لطیفہ نفس غالب آ جاتا ہے، یا آگ کا لطیفہ غالب آ گیا، یا پانی کا لطیفہ غالب آ گیا، ہوا کا لطیفہ غالب آ گیا، یا پھر مٹی کا لطیفہ غالب آ گیا، تو وہی اثرات غالب آ جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں عالم میں امر کا لطیفہ کمزور پڑ جاتا ہے. جب کمزور پڑ جاتا ہے پھر بندے کے اندر فساد اور بگاڑ رونما ہو جاتا ہے. لہذا اب میں ذرا مضمون آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ عالم امر کے 5 لطائف اور عالم خلق کے 5 لطائف، ان کا آپس میں ہر وقت مقابلہ لگا رہتا ہے. مشائخ کہتے ہیں کہ آپ پہلے عالم امر کے 5 لطائف پہ محنت کریں، یہ مضبوط ہو جائیں، یہ قوی ہو جائیں. پھر اس کے بعد عالم خلق کے لطائف کو چھوڑنا نہیں ہے، فقط ان پر غلبہ حاصل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو اعتدال پہ لانا، ان کی درستگی کرنا ضروری ہے. جس طرح بندہ دشمن پہ غلبہ تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن غلبہ فقط مقصود نہیں ہوتا، بلکہ دشمن کو اخلاقی طور پہ زیر کرنا ہوتا ہے یا اپنا تابع بنانا ہوتا ہے، فقط دبانا مقصود نہیں ہوتا. اس لیے مشائخ کیا کرتے ہیں کہ پہلے عالم امر کے لطائف پہ محنت کرتے ہیں. عالم امر کے لطائف کی وجہ سے عالم خلق کے لطائف مغلوب تو ہو جاتے ہیں، لیکن پھر عالم خلق کے لطائف پر محنت کر کے ان کو باقاعدہ ہمیشہ کے لیے ان کی اصلاح کی جاتی ہے، ان کو اعتدال پہ لایا جاتا ہے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ جسم کی اپنی ضروریات اور روح کی اپنی ضروریات. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جسم کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، جسم کمزور ہوتا ہے، لیکن روح قوی ہوتی ہے. جب روح قوی ہوتی ہے تو جسم کی کمزوری کی تلافی ہو جاتی ہے. یہ بات سمجھ لیں کہ بندہ کمزور ہوگا، مسجد تک آنا دشوار ہوگا، لیکن روح جب قوی ہوتی ہے بندہ گرتے پڑتے گھسڑتے مسجد میں پہنچ جاتا ہے. معمر حضرات ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی، لیکن رمضان شریف میں لمبی تراویح پڑھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ روح قوی ہوتی ہے. نوجوان پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب امام رکوع میں جائے گا تب ہم نے بھاگتے ہوئے شامل ہونا ہے، کیونکہ وہاں جسم قوی ہے لیکن روح کمزور ہے. تو جسم کی کمزوری کی تلافی روح کے ساتھ، روح کی قوت کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کیونکہ روحانی طور پہ بہت زبردست قوت کے حامل ہوا کرتے تھے، اس لیے جسمانی طور پہ اگرچہ وہ اتنے بڑے قد کاٹ والے نہ بھی ہوتے پھر بھی ان کی کمزوری محسوس نہیں ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو مصر میں ایک قبطی کو مارا تھا، انہوں نے تو آرام سے مارا تھا،
لیکن ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک پیغمبر کا آرام سے مارنا آگے والے کے اوپر کس قدر شدید پڑ سکتا ہے. تو قضا علیہ، تو بس مارتے ہی اس بندے کا کام کر دیا. پیغمبر کی قوت تھی. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے. مدین شہر کے کنارے بیٹھ گئے. نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی رشتہ داری تھی، نہ ٹھکانہ تھا. پریشان تھے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں آپ کی طرف سے کوئی اترنے والی خیر کا محتاج ہوں، انتظار میں ہوں. پھر دیکھا مدین شہر کے قریب ایک کنواں تھا. کنویں کے پاس لوگ جانوروں کو لاتے تھے اور پانی پلاتے تھے. وہاں پہ 2 لڑکیاں اور تھی جو مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں چاہتی تھی. وہ دور اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی تھی کہ یہ لوگ جائیں گے تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی. وہ مرد حضرات تھے، انہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، لیکن ظلم یہ کر دیا کہ پانی پلانے کے بعد جو کنویں کے کنارے پہ ایک بڑا پتھر، چٹان نما بڑا پتھر پڑا تھا، تو وہاں 10-12 بندے مضبوط قوت والے وہ آئے اور کنویں کے منہ کے اوپر اس پتھر کو دھکیل دیا. پتھر کو دھکیل کے کنویں کے منہ کے اوپر فٹ کر دیا. فٹ کرنے کا معنی یہ کہ کنویں کو تالا لگ گیا. اب کوئی بندہ پانی نہیں نکال سکتا. وہ 2 جوان العمر لڑکیاں بیٹی وہ کھڑی انتظار کر رہی تھی اور بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی کہ اب یہ پتھر ہٹانا ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مصر میں بھی ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، یہاں پہ بھی ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے. آگے بڑھے اور وہ بڑی چٹان یا چٹان نما پتھر جو 10-12 بندوں نے دھکا دے کے کنویں کی منہ کے اوپر فٹ کر دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنے تنہا اس کو اٹھایا اور ایسے دور پھینک دیا اور پھر بچیوں کو اشارہ کر دیا. پھر فوراً ڈھول بھر بھر کے ان کی بکریوں کو پانی پلایا. اور پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی، واقعہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو جب وہ بچی اپنے والد سے کہہ رہی تھی کہ یا ابا تستاجر ہو، ابا جان ان کو اپنے پاس ملازم کے طور پہ رکھ دیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین کہا تھا کہ بڑا قوی ہے، بڑا باحیا، امانت دار ہے، خیانت نہیں کرتا. تو قوی ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کو کیسے کشتی میں پچھاڑ دیا تھا، حالانکہ وہ ایسے مضبوط پہلوان تھے کہ چیمپئن تھے اپنے وقت اپنے زمانے کے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے پہلوانی میں پچھاڑ دو، کشتی میں مجھے شکست دے دو تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑی، اس کو گرا دیا، پھر دوبارہ گرا دیا، پھر تیسری مرتبہ پھر گرا دیا، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. یہ روح کی قوت ہوتی ہے جو جسم کی کمزوری کی تلافی کرتی ہے. روح کی قوت جسم کی کمزوری کی تلافی کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ جسمانی عوارض کی صورت میں ذکر کی تلقین کی جاتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کام کاج زیادہ ہوتا تھا اور ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، چکی پیسنی پڑتی تھی، کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تھا، تو بڑا مسئلہ تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ابا جان کے پاس چلی جائیں اور وہاں سے کوئی خادم، کوئی باندھی لے لیں، وہ آپ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں تعاون کریں گے. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھیں، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے باندھی کا مطالبہ کیا تھا کہ کام کاج زیادہ ہیں تاکہ میرے ساتھ کام کاج میں تعاون کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام ذمہ لگا لیا کہ آپ تسبیحات پڑھا کریں. جی ہاں، گھر کے کام کاج کے لیے جسم کی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر روح مضبوط ہو جائے تو پھر جسم کی کمزوری کی تلافی ہو جاتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روح کی غذا بتائی کہ اپنی روح کو مضبوط کر لیں، گھر کے کام کاج میں آسانی ہو جائے گی. لہذا جب بھی جسم کمزور ہوتا ہے، روح کی قوت اس کمی کی تلافی کرتی ہے. بلکہ میں اگلی بات عرض کروں کہ کئی مرتبہ روح طاقتور ہوتی ہے تو جسم کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ہماری آنکھیں ہیں،
जब ये बिल्कुल सही काम करते हैं, लोग कहते हैं उसकी 6x6 बीनाई है, सही काम करती है। ये कितनी ही तेज बीनाई वाली क्यों ना हो जाए, लेकिन अंधेरे में नजर नहीं आता, सिर्फ रोशनी में नजर आता है। दीवार से इस पार नजर आता है, दीवार से उस पार नजर नहीं आता। लेकिन रूह कवी हो जाए तो फिर बंदे की बीनाई इतनी तेज हो जाती है कि रोशनी में नजर आता है तो अंधेरे में भी नजर आता है। करीब की चीज नजर आती है तो दूर की चीज भी नजर आती है। जो चीजें आम लोगों की निगाहों से ओझल होती हैं वो भी उनको नजर आ जाती हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के करीब एक बस्ती में हर महीने बयान करने के लिए तशरीफ ले जाते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो हजरात साहबा किराम से मोहब्बत करने वाले सुन्नी थे, कुछ लोग हजरात साहबा किराम से बुग़्ज़ रखने वाले थे। तो वो जो सुन्नी लोग थे उन्होंने हजरत नानूतवी से अर्ज किया कि हमारे गांव में आप तशरीफ लाएं और हर महीने एक बयान कर लिया करें। हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह का इल्म, उनका इखलास, उनका तक़वा, लिल्लाहियत, असर ये था कि अपने सुनते थे वो तो थे ही अपने, अगर गैर भी सुन लेते थे तो वो भी कायल हुए बगैर रह नहीं सकते थे। दूसरी जानिब के लोगों को परेशानी लाहिक हो गई कि अगर इस तरह ये आता रहा तो हमारा तो नामो निशान ही खत्म हो जाएगा, चुनांचे किसी तरीके से उनका ये सिलसिला बंद कर देना चाहिए। तरीका ये इख्तियार कर लिया, मशवरा किया। उनके जो मौलवी था उसने कह दिया कि मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जब ये अगली मर्तबा आए तो तुम लोगों ने मुख्तलिफ सवालात करने हैं और सवालात में इसको उलझाना है ताकि ये अपने मौजू बयान करने के लिए फारिग ही ना हो सके। सवालात में उलझा के उसका वक्त जाया कर दो, बस फिर अगली मर्तबा फिर ऐसा करेंगे, फिर हमारी जान छूट जाएगी। चुनांचे उसी आलिम ने अपने साथियों में से 10 साथियों को मुकर्रर किया कि आपने ये सवाल पूछना है और आपने ये सवाल पूछना है और आपने ये सवाल पूछना है। 10 दकीक और अमीक किस्म के सवालात मुतय्यन कर दिए और साथियों को बताए। हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, मिंबर पे बैठे, सामने वो सारे लोग बैठे हुए थे, वो 10 बंदे भी बैठे हुए थे। हजरत ने फरमाया कि मियां आज मेरा बयान करने का इरादा नहीं है, आज मेरा बयान करने का इरादा नहीं है। कुछ लोगों के जहनों में सवालात होते हैं, आज मेरा दिल चाहता है कि मैं उन सवालात के जवाबात दे दूं। फिर फरमाया कि बाज लोगों के जहन में यह सवाल होता है, उसका जवाब ये है, और किसी बंदे के जहन में अगर यूं सवाल है तो उसका जवाब ये है, और अगर किसी के जहन में यह सवाल है तो उसका जवाब ये है। 10 बंदों के 10 सवालात भी बता दिए और उनके 10 जवाबात भी बता दिए। अब जो लोग मुतनफिर थे वो और ज्यादा मुतासिर हो गए। चुनांचे अगली मर्तबा उन्होंने एक और मंसूबा बनाया, प्रोग्राम ये बनाया कि हम किसी तरीके से हजरत नानूतवी को शर्मिंदा करते हैं। हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने वहां आके बयान किया। बयान के बाद उन लोगों के 2 बंदे आए और कहने लगे कि हमारा जनाजा तैयार है, हमारा मौलवी जो है किसी और तरफ गया हुआ है, तो आप हमारी मैयत का जनाजा पढ़ाएं। हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई आप लोगों का मसलक और है, मेरा मसलक और है, तो आप अपने किसी बंदे से पढ़वा लो। उनका इसरार था कि नहीं, हमने आपसे पढ़वाना है, हम आपके अकीदतमंद हैं और आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। हजरत ने फरमाया कि चूंकि मेरा मसलक और है तो ऐसा ना हो कि आप लोगों का नुकसान हो जाए। उन्होंने कहा नहीं हजरत, हमने आपसे पढ़वाना है, कोई नुकसान नहीं होना। हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए। अच्छा, उन्होंने क्या किया था कि एक जिंदा बंदे को लेटा के कफन पहनाया था। प्रोग्राम यह था कि हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह जब पहली तकबीर कहेंगे तो वो बंदा उठ के बैठ जाएगा। जब उठ के बैठ जाएगा तो हम ताली बजाएंगे, शोर मचाएंगे, ये कैसे अल्लाह वाले हैं, इसको तो पता ही नहीं चला, जिंदा बंदे का जनाजा पढ़ा रहा था। यूं शर्मिंदा हो जाएगा तो दोबारा हमारी बस्ती का रुख नहीं करेगा। ये तो था उनका प्रोग्राम। हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह आए, फरमाया सफी सीधी कर लो। सफी सीधी हो गई, फिर जनाजे की नीयत बांध ली। आपने पहली तकबीर पढ़ाई, वो बंदा नहीं उठा। दूसरी तकबीर हो गई, बंदा नहीं उठा। तीसरी तकबीर हो गई, बंदा नहीं उठा। चुनांचे 4 तकबीरें मुकम्मल हो गई, जनाजा मुकम्मल हुआ।
تو तब उनमें से कोई बंदा आगे आया और उस बंदे को हिलाया कि उठता क्यों नहीं है, जनाजा तो मुकम्मल हो गया। हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे रवाना हुए और पीछे मुड़ के देखा, फरमाया जिसका जनाजा मौलवी कासिम पढ़ाता है वो क़यामत से पहले नहीं उठ सकता। और वाकई वो बंदा मर गया था। मन आदा ली वलियन फकद आदंतहु बिल हर्ब, जो मेरे एक वली के साथ दुश्मनी करता है तो मेरी जानिब से उसके खिलाफ ऐलान जंग है। बंदे की बीनाई तेज हो जाती है, वो कुछ नजर आता है जो बाकी लोगों को नजर नहीं आता। हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फरमाते थे कि मैं लानत भेजता हूं उस पीर पर, ये अल्फाज, मैं लानत भेजता हूं उस पीर पर जिसके पास मुरीद आए और पीर को पता ही न चले कि यह बंदा किस लिए आया है। जी हां, ये अल्लाह वालों के ऊपर लोगों के दिलों के हालात मुनकशिफ हो जाते, बीनाई की कुव्वत तेज, गोयाई की कुव्वत तेज हो जाती। रूह बंदे की कवी होती है तो बंदे की गोयाई लोगों पर असर अंदाज होती है। सिर्फ ये नहीं कि इस मजमे तक जाए बल्कि दूर दूर तक बंदे की आवाज पहुंच जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई तो अल्लाह ताला ने फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों के दरमियान हज का ऐलान कर दो। आप हजरात को पता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब आवाज लगाई तो उस वक्त जो लोग रूए जमीन पर मौजूद थे उन तक तो आवाज पहुंच ही गई, जो लोग आलम अरवाह में थे उन तक भी वो आवाज पहुंच गई। रूहानी कुव्वत इतनी थी कि आलम अरवाह तक वो आवाज पहुंचा दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र के सामने खड़े हो जाते थे, कुम बिइज़्निल्लाह फरमाते थे। वो कब्र के हालात, ये आलम बरज़ख है, वो ये जहान है ही नहीं, लेकिन उस जहान तक भी आपकी आवाज पहुंच जाती थी और मुर्दा कब्र से निकल आता था और खड़ा हो जाता था। कुव्वत गोयाई तेज, कुव्वत शामा, सूंघने की हिस्स बंदे की तेज हो जाती है अगर बंदे की रूह मजबूत होती है। हजरत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा उहद में थे, वो जा रहे थे कुफार के ऊपर हमला करने के लिए। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु सामने आए, फरमाया या साद इन्नी अजिदु रिहल जन्नति दूना उहदिन, साद जन्नत में उहद से इस तरफ जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं, जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं। तो रूह की कुव्वत की बदौलत बंदे के अंदर बेपनाह सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में थे और मलका बिल्कीस का तख्त मंगवाना था, तो फरमाया कि अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। वो मलका बिल्कीस और उसके वजीर मुशीर आ रहे हैं, उसके तख्त को कौन मेरे पास लेके आएगा, इससे पहले पहले कि वो लोग पहुंच जाएं, उससे पहले तख्त पहुंचाना यहां पे जरूरी है। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। और बड़े देव ने कहा, बड़ा जिन था जिसके अंदर कुव्वत थी, जिस्मानी कुव्वत थी, जिस्मानी कुव्वत थी। आप अभी इस मजलिस को बर्खास्त नहीं कर चुके होंगे कि मैं आपके पास मलका बिल्कीस का तख्त ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये बहुत देर हो जाएगी, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। तो क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक। वो जिसके पास किताब का इल्म था, उस बंदे के पास रूहानी कुव्वत थी और कहा कि अभी आप फलक नहीं झपक चुके होंगे कि मैं आपके पास मलका बिल्कीस का तख्त पेश करूंगा। फलम्मा रआहु मुस्तक़र्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। ओ पलक झपकने में जब मलका बिल्कीस का तख्त सामने आ गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बे इख्तियार बोल पड़े, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। तो जब रूह कवी हो जाती है तो जिस्म की कमजोरी की तलाफी हो जाती है, जिस्म की कमजोरी की तलाफी हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी रूह को मजबूत करने की कोशिश करें। ये तो है अपने जिस्म के अंदर जो रूहानियत और मादियत की कशमकश चल रही है, और एक खारिज में जो हमें इस जहान में रूहानियत और मादियत की कशमकश नजर आ रही है, इसमें भी अगर रूहानियत मजबूत होती है तो फिर तो खैर गालिब रहेगी।
अगर रूहानियत में कमी है तो फिर शर ही मगलूब रहेगा। मादियत वाले और मादी को पूजने वाले या मादी पर मेहनत करने वाले गालिब रहेंगे। और आप देखें कि अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया है वो ये दिया है कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, तुम मदद हासिल कर लो सब्र के साथ और नमाज के साथ। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तुम मादे पर मेहनत करके कुव्वत हासिल करो तो फिर तुम गालिब आ जाओगे। फरमाया तुम सब्र के साथ मदद हासिल कर लो और मादे के साथ मदद हासिल कर लो। अब रूहानी अमाल की अपनी एक तासीर होती है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में क्या तासीर है? साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन आज तक साइंस सूरज और चांद गिरन का रास्ता नहीं रोक सकी है। कि सूरज गिरन तो हो जाता है, हमें पता तो चल जाता है, लेकिन सूरज को गिरन से निजात कैसे मिलेगी, चांद को गिरन से कैसे बचाया जा सकता है, अभी तक साइंस ये तरीका दरियाफ्त नहीं कर सकी। जबकि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का असर सूरज चांद सितारों पे पड़ जाता है। नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज का असर पानी पर पड़ जाता है, नमाज का असर हवा पे पड़ जाता है, नमाज का असर बादलों पे पड़ जाता है, नमाज का असर अजराम फल्की पर पड़ जाता है। किसी इलाके की तरफ आंधियां और तूफान रुख कर लें और आंधियों के जेर जबर होने का खतरा होता है तो कहा जाता है कि तुम नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ोगे तो हवाओं का, तूफानों का रुख बदल जाएगा, बस्तियां महफूज हो जाएंगी। अगर कश्ती सफर कर रही है, समुंदर के बीच में कश्ती फंस जाती है और पानी की बेरहम लहरें कश्ती को तख्ते तख्ते में तब्दील करने की कोशिश कर रही होती हैं, उस वक्त शरीयत कहती है कि तुम कश्ती वालों, तुम 2 रकात नमाज पढ़ो, दरिया की तुगयानी खत्म हो जाएगी, पानी को ठहराव मिल जाएगा, कश्ती सलामती के साथ किनारे लग जाएगी। बादल आसमान पर छाए हुए हैं, बारिश की जरूरत है, लेकिन बारिश नहीं बरस रही, लोग बेचारे परेशान हैं, पीने को पानी नहीं मिल रहा, बादल बखील बन चुके हैं। शरीयत कहते 2 रकात नमाज पढ़ो, सलातुल इस्तिस्का, उसका असर बादल पर पड़ जाएगा, बादल पानी छोड़ जाएंगे, पानी की कमी पूरी हो जाएगी। और इसी तरीके से जब सूरज गिरन हो जाए, चांद गिरन हो जाए, शरीयत कहती है तुम 2 रकात सलातुल कुसूफ पढ़ लो, 2 रकात सलातुल खसूफ पढ़ लो, तो सूरज को गिरन से निजात मिल जाएगी, चांद को गिरन से निजात मिल जाएगी। तो मालूम होता है कि इन आमाल की अपनी ताकत है और रूहानी ताकत फिर मादी ताकत को जेर जबर कर देती है। रूहानी ताकत के मुकाबले में फिर मादी ताकत नहीं तैर सकती। चुनांचे तातारी अफवाज ने जब इराक पे हमला किया था और बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी थी, मुसलमान इतने कमजोर हो चुके थे। उस वक्त मुसलमान कहा करते थे इज़ा क़ील लका अन्न ततारा इन हज़मू फला तुसद्दिक़ हो, अगर आपको कहा जाए कि तातारियों को कभी शिकस्त हुई है तो ये न मानने वाली बात है। गोया कि मुसलमान मायूसी में मुब्तला हो चुके थे, इतने मायूस थे, वो समझते थे कि तातारी नाकाबिल शिकस्त हैं, उनको शिकस्त दी नहीं जा सकती। और पस्त हिम्मत इतनी थी कि मुसलमान बेचारा गली में जा रहा होता था, तातारी खातून कहती थी कि यहां पे खड़ा हो जा और मैं अंदर से खंजर लेके आती हूं, तुझे मारना है, तूने यहां से हिलना नहीं है। चुनांचे तातारी मुसलमान वहीं पे खड़ा होता था, तातारी खातून चली जाती थी, खंजर निकाल के आ जाती थी, उस मुसलमान को कत्ल करती थी और मुसलमान के पास इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो भाग जाए और जान छुड़ा ले। इतने मुसलमान पस्त हिम्मत थे और उस वक्त तातारी बड़े जोर में थे और कुव्वत में थे। लेकिन जब तातारियों ने शहर पे हम कब्जा कर लिया, फिर तातारी शहजादों ने अपने बंदों को भेजा कि जाओ देख लो, मुसलमान चूंकि शहर पहले से खाली कर चुके थे, जाओ देख लो यहां कोई मुसलमान है तो नहीं इस आबादी में। वो करंदे इधर उधर फैल गए, एक कच्ची सी पुरानी सी मस्जिद थी, वहां पहुंच गए। एक शेख बैठे हुए थे, सैयद अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह, शहर दरबंद था, सैयद अहमद दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन के दरमियान बैठे हुए थे। चुनांचे वो आए करंदे और करंदों ने उनको पकड़ लिया और हथकड़ियां लगा दी और तातारी शहजादे के पास पेश कर दिया। तातारी शहजादे ने कहा
کہ جب سارے لوگوں نے شہر کو خالی کر دیا تم لوگوں نے شہر کو خالی کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے گھر سے تو کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا، اللہ کے گھر میں کوئی کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تو تتاری شہزادے نے کہا کہ تمہیں ہم نے اللہ کے گھر سے گرفتار نہیں کیا، کیا تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، کیا تم ہمارے قبضے میں نہیں ہو؟ جو ہی انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، حضرت نے ایسے ہتھکڑیوں کی طرف دیکھا، فرمایا یہ ہتھکڑیاں، اور ایک زوردار ضرب لگائی اللہ، جو اللہ کہا، ہتھکڑیاں ٹوٹ کے گر گئی، زمین پہ گر گئی اور ہاتھوں سے اتر گئی۔ پھر تاتاری شہزادہ بڑا متاثر ہو گیا، مرعوب ہو گیا، اور ان حضرات کو وہاں سے رہا کروایا اور ساتھیوں سے کہا کہ ان کو باعزت طور پہ وہیں پہنچا دو اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ چنانچہ وہ حضرات اسی مسجد میں رہتے تھے۔ تاتاری شہزادہ متاثر تو ہو چکا تھا، نظر تو پڑ گئی تھی، وہ جو اللہ کی ضرب لگائی تھی وہ صرف لوہے پہ نہیں لگی تھی، وہ تاتاری شہزادے کے دل کے اوپر بھی لگ چکی تھی، متاثر تو ہو چکا تھا۔ چنانچہ تاتاری شہزادہ رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کے آیا کرتا تھا، حضرت سے ملاقات بھی کرتا تھا، حضرت سے ہدایات بھی لیتا تھا۔ تاتاری شہزادہ کہہ رہا تھا کہ میں ظاہراً تو مسلمان نہیں ہوں لیکن میرا دل مسلمان ہو چکا ہے، تو جو آپ نے ایک مرتبہ اللہ کہا تھا میرا دل اسی وقت مسلمان ہو چکا ہے۔ میں اس وقت اگر اسلام کا اعلان کر لوں تو پھر لوگ مجھ سے متنفر ہو جائیں گے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں کہ جب یہ حکومت مجھے مل جائے پھر انشاءاللہ میں اپنے اسلام کا اعلان بھی کروں گا اور شریعت کا نفاذ بھی کروں گا۔ اور پھر وہی شہزادہ جب بعد میں حکمران بنا تو نہ صرف یہ کہ اس نے اسلام کا اعلان کر دیا بلکہ شریعت مطہرہ کو بھی نافذ کر دیا۔ ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں آج بھی تاتار کے افسانے سے، تاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ روح کی قوت ہوتی ہے، حضرت لوہا بڑا مضبوط ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھ لیا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبال اوبی معہ والطیر، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب ذکر کرتے تھے پہاڑ بھی ذکر شروع کر دیتے تھے، پرندے بھی ساتھ ذکر شروع کر دیتے تھے۔ فرمایا یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ لوہا بھی ذکر کے سامنے، روحانی قوت کے سامنے یہ نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حیرہ شہر کو فتح کیا تو اس وقت حیرہ شہر کا جو سب سے بڑا پادری تھا وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، شیشی تھی، تو خالد بن ولید نے پوچھا کہ اس شیشی میں کیا ہے؟ تو اس پادری نے کہا، عمر بن عبد المسیح اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ اس میں زہر ہے۔ اچھا تو زہر کا کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس لیے ساتھ لیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر لی تو میں یہ زہر پی لوں گا اور خودکشی کر لوں گا۔ اگر آپ نے ہمارے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر لی تو میں یہ زہر پی لوں گا اور میں خودکشی کر لوں گا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا یہ زہر بھی اثر کرتا ہے؟ کیا یہ زہر بھی اثر کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اثر کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے دے دیں، میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ پادری نے وہ زہر آپ کو دے دیا، آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھا اور پھر پوری شیشی اپنے منہ کے اندر انڈیل دی۔ وہ عیسائی پادری دیکھ رہا تھا کہ اب گرا تو اب گرا، اب گرا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بالکل صحیح سلامت بیٹھے ہوئے تھے، ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ تو عمر بن عبد المسیح نے مسلمانوں سے کہا کہ لن تغلبوا ما دام هذا او مثل هذا فیکم، جب تک ایسے لوگ تمہارے درمیان میں موجود رہیں گے تم کبھی مغلوب نہیں ہوگے۔ جب بھی تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہوں گے تم کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، 14 صدیوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ غزوہ بدر سے لے کر قریب کے زمانے تک جب بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہے، جب بھی کفر کو شکست ہوئی ہے اور ذلیل و رسوا ہوا ہے،
तो मैं कहता हूं कि मादी ताकत की बुनियाद पे नहीं हुआ, हमेशा के लिए रूहानी कुव्वत की बुनियाद पे कुफर को शिकस्त हुई है। हमेशा के लिए मादी ताकतों को अगर शिकस्त हुई है तो रूहानी कुव्वत के हामिलीन ने शिकस्त दी है। हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन रूमियों के खिलाफ क़िताल करते करते हिमस को फतह कर लिया, बैतुल मक़दस को फतह कर लिया, इंताकिया को फतह कर लिया। कुस्तुंतनिया में रूमी जमा हो गए। रूमियों की 1 लाख फौज तो थी, वो तो मैदान में थी, और हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह के पास 35,000 बंदे थे। 35,000 बंदे, उनके पास 1 लाख फौज थी। तो उन फौजियों ने हेरकल से दरखास्त की, फौज के सिपाहसालार ने हेरकल से दरखास्त कर ली कि हम मुसलमानों के मुकाबले में कमजोर हैं और मुसलमान आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हम इनका रास्ता नहीं रोक सकते, हमारी मदद कर लो, हमारी मदद कर लो। तो हेरकल ने कहा कि मुझे ये बताओ कि तुम तादाद में ज्यादा, तुम असलहे में ज्यादा, तुम कुव्वत में ज्यादा, आखिर मुसलमान तुम्हारे ऊपर गालिब क्यों आ जाते हैं? तो उसी लश्कर के कुछ समझदार लोगों ने कहा कि मुसलमानों के अखलाक हमसे अच्छे हैं। ये नहीं कहा तलवारें हमसे अच्छी हैं, मुसलमानों के अखलाक हमसे अच्छे हैं। ये रातों को इबादत करते हैं, दिन को रोजा रखते हैं, बदकारियां नहीं करते, आपस में अदल और इंसाफ करते हैं। जबकि हम बदकारियां करते हैं, हम शराब पीते हैं, हम वादी की पाबंदी नहीं करते, हम अदल इंसाफ नहीं करते, इसलिए उनके काम में इस्तिकलाल है और हमारे काम में जोश और इस्तिकलाल नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं, उन्होंने अपनी शिकस्त की जो वजह बताई है कि हम जिना करते हैं। कोई जानी बंदा भी ताकतवर, वो बहिम्मत हो सकता है, कोई शराबी बंदा भी बहादुर हो सकता है। जिन लोगों ने इस्लाम को गलबा दिलवाना था वो अगर जिना में मसरूफ हो गए और शराब नोशी की आदत उनको पड़ गई, उनके अंदर बहादुरी कहां से आएगी और वो लोग कहां इस्लाम के गलबे का बायस बन सकते हैं? हाँ, अखलाक अच्छे हैं, जो मुसलमानों की सिफात बयान की थी कि इनके अखलाक अच्छे हैं, रातों को इबादत करते हैं, दिन को रोजा रखते हैं, रातों को इबादत करते हैं, दिन को रोजा रखते हैं, अदल इंसाफ करते हैं, इसलिए इनके काम में जोश और इस्तिकलाल है। तो उनकी उन सिफात को गिनवाया जिनका ताल्लुक रूहानियत के साथ था। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा मूता में थे। ग़ज़वा मूता में हजरत खालिद बिन वलीद सिपाहसालार थे, हजरत ज़ैद बिन हारिसा थे, फिर अब्दुल्ला बिन जाफर बिन तैयार थे, जाफर तैयार, फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा थे, फिर उसके बाद खालिद बिन वलीद बने थे। लेकिन मुसलमानों की तादाद 3,000 और काफिरों की तादाद 1 लाख। मुसलमानों की तादाद 3,000, काफिरों की तादाद 1 लाख। ग़ज़वा मूता की बात है। तो किसी ने कहा कि अब ऐसे दुश्मन के सामने जाना ये तो अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। अपने आप को हलाकत में न डालें, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इत्तला भेजें कि वहां से और सहाबा किराम को भेजें ताकि हमारी कुव्वत मजबूत हो जाए। अब लश्कर में मशवरा हो रहा था क्या करना चाहिए और पीछे इत्तला देनी चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जो खड़े हो गए। उन्होंने ऐसी पुरजोश तकरीर फरमाई और उस तकरीर का खुलासा यह था कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम काफिरों के साथ मुकाबला अफराद की तादाद की बुनियाद पे करते हैं या हम काफिरों के साथ मुकाबला असलहे की कुव्वत की बुनियाद पे करते हैं? नहीं, हमारा काफिरों के साथ मुकाबला उस ईमान की कुव्वत की बुनियाद पे है जिसके साथ अल्लाह ताला ने हमें सरफराज फरमाया है और वो कुव्वत हमारे पास है। हमारे पास अफराद कम है, हमारे पास असलहा कम है, लेकिन हमारे पास ईमान की कुव्वत मौजूद है और हम ईमान की कुव्वत पे आगे बढ़ते हैं। लिहाजा आगे बढ़ें, दो में से एक भलाई आपको हासिल हो जाएगी, या तो आपको फतह हासिल हो जाएगी या शहादत हासिल हो जाएगी। इस पुरजोश अंदाज में तकरीर फरमाई कि फिर सारा मजमा कहने लगे आमन्ना व सद्दकना, हम भी इसी बात को मानते हैं, आगे बढ़ें। और फिर तारीख इस बात पे गवाह है कि 3,000 अफराद ने 1 लाख बंदों को मैदान में टिकने नहीं दिया
और ऐसे भगा दिया कि उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या चीज थी ये? रूहानी कुव्वत थी। रूह की कुव्वत हमेशा के लिए गालिब रहती है। अब मेरा मकसद ये हरगिज नहीं है कि हम मादे पर मेहनत न करें, बिल्कुल नहीं। कोई बंदा ये मतलब अखज न करे। मादे पर मेहनत करना अल्लाह का हुक्म है। मादे पर मेहनत करना ये अल्लाह का हुक्म है। असबाब इख्तियार करना ये अल्लाह का हुक्म है, इनको नहीं छोड़ना। लेकिन रूह पर मेहनत करने से गाफिल हो जाना यकीनन खुसरान और घाटा है, इसमें हमें कोई फायदा नजर नहीं आता। मैं मानता हूं कि अल्लाह ताला ने फरमाया वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, तुम काफिरों के लिए कुव्वत तैयार कर लो, बहुत अच्छी बात है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन्नल कुव्वत अर्रम्य, कुव्वत क्या चीज है कि बंदे के पास दूर से मारने की सलाहियत हो। एक तो तलवार से मारते थे, ये तलवार से मारना ये भी कुव्वत है, लेकिन असल कुव्वत यह है कि बंदा दूर से दुश्मन को निशाना बनाए। तो हुजूर ने फरमाया कि असल ताकत यह है कि दुश्मन को दूर से निशाना बनाया जाए। अब मैं ये भी मानता हूं कि वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, मैं ये भी मानता हूं कि अला इन्नल कुव्वत अर्रम्य, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये रम्य तब कुव्वत है, ये फेंकने की सलाहियत और दूर से दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत, ये तब कुव्वत है कि जब यहां बटन दबाने वाला अल्लाह के साथ इस कदर मजबूत ताल्लुक वाला हो कि फिर अल्लाह भी फरमाए कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। वो रम्य कुव्वत है, ये रम्य कुव्वत नहीं है कि बनाते जाओ और गोदाम में रखते जाओ और स्टोर करते जाओ। वो रम्य कुव्वत है कि बटन दबाने वाले की अल्लाह के साथ इस कदर मजबूत निस्बत हो कि फिर अल्लाह ताला फरमाए कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। फिर होगा क्या कि आपके पास तीर होगा तो तीर निशाने पे लगेगा, आपके पास गुलेल है तो गुलेल अपना काम कर जाएगी, आपके हाथ में पत्थर है, पत्थर फेंकेंगे तो वो भी काम कर जाएगा। यहां तक कि अगर आपके हाथ में और कुछ नहीं है, एक मुट्ठी मिट्टी है, ये मिट्टी भी आप फेंकेंगे, ये भी अपना काम कर जाएगी, वह दुश्मन के दांत खट्टे कर जाएगी। लेकिन उसके लिए वही रूहानी कुव्वत का हामिल होना जरूरी होता है। और मैं वही बात दोबारा अर्ज करूं कि मैं कभी नहीं कहता कि मादे पर मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन रूह पर मेहनत करने से गाफिल होना, इसी ने ही हमें खसारे में डाला हुआ है। आज अगर उम्मत पस्ती की शिकार है, आज अगर उम्मत अक़वाम आलम के सामने हद दर्जे गिर चुकी है, उसकी वजह यह नहीं है कि हमारे पास मादी कुव्वत नहीं है। कौन कहता है हमारे पास मादी कुव्वत नहीं है? मैं मानता हूं कि उनके बराबर की कुव्वत नहीं है, लेकिन इतनी तो हमारे पास है ना कि हम थोड़ी ही देर में किसी एक मुल्क को या मुट्ठी भर यहूदियों को राख का ढेर बना सकते हैं। उनके बराबर की कुव्वत नहीं है, लेकिन इतनी तो हमारे पास है, लेकिन हम फिर भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? वजह यह है कि अंदर कुव्वत नहीं है, और ये अंदर की कुव्वत जरूरत होती है। आप अहादीस का मुताला करें, आप कुरानी आयत का मुताला करें, किसी एक आयत में, किसी एक हदीस में आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि तुम्हारी शिकस्त की वजह मादी कुव्वत की कमी होगी, या अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि तुम्हारी शिकस्त की वजह मादी कुव्वत की कमी होगी। जिन जिन रिवायात में मुसलमानों की पस्ती और शिकस्त की वजूहात बताई गई हैं, हमेशा के लिए रूहानी कुव्वत की कमी बताई गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअ अल आकिलतु इला क़सअतिहा फ़क़ाल क़ाइलुन मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन क़ाल अल्लाह बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कग़ुसाइस सैल। फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अक़वाम आलम एक दूसरे को बुलाएंगे, इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए एक दूसरे को बुलाएंगे जिस तरह के खाने के लिए लोगों को बुलाया जाता है, भाई आ जाओ खाना तैयार है, आ जाओ खाना तैयार है। ऐसे ही फिर काफिर कहेंगे आ जाओ मैदान तैयार है। एक मर्तबा फिर हमने मुसलमानों को नहलाना है खून में,
एक मरतबा फिर हमने इनकी औरतों को बेवा बनाना है, इनके बच्चों को यतीम बनाना है, इनको खून में नहलाना है। यूशक अन तदा अलैकुमुल उमम कमा तदा अल आकिलतु इला क़सातिहा। फिर बुलाया जाएगा, आ जाओ फलां मुल्क पे हमला करना है, अब फलां मुल्क पे हमला करना, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि वह मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, अल्लाह के नबी उस वक्त हमारी ताकत कम हो, हमारी तादाद थोड़ी होगी, हमारी तादाद थोड़ी होगी। फरमाया ला, तुम 2.25 अरब होंगे। वैसे मैं आते हाजरा की बुनियाद पे कहता हूं, ला बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद में तो कोई कौन तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगी, तादाद तो तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, जिस तरह की सैलाब आए, पानी की सतह के ऊपर झाग बनी होती है, वो झाग की तरह तुम बेहकीकत हो जाओगे, झाग की तरह तुम बेवजन हो जाओगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुम अल महाबत मिनकुम, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब निकाल देगा, रोब खत्म हो जाएगा, रोब खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, टैंक आ रहा है, बंदे के हाथ में पत्थर है, अब वो पत्थर टैंक के ऊपर फेंकता है। मुझे भी पता है कि इस पत्थर ने टैंक को उड़ाना नहीं है, वो बड़ा मजबूत लोहे का बना हुआ है। मुझे भी पता है कि इस तरीके से टैंक का रास्ता नहीं रोका जा सकता, लेकिन टैंक चलाने वाला जब देखता है कि ये मुसलमान है जो इस टैंक के सामने पत्थर लिए खड़ा है, तो उसका दिल जरूर मुतासिर हो जाता है। हो नहीं सकता मुसलमान की इस जुर्रत, इस बहादुरी और इस जज्बे से वो काफिर मुतासिर न हो, तो उसके लिए टैंक चलाना भी दुश्वार हो जाएगा, वो खुद टैंक के अंदर लड़खड़ाना शुरू कर देगा। माया वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूर अदुव्विकुम अल महाबत मिनकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारा रोब निकाल देगा, रोब खत्म हो जाएगा। वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फी क़ुलूबिकुमुल वहन, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा, वहन डाल देगा। सहाबा ने पूछा वमल महन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये वहन क्या चीज है, वहन किया चीज है। काल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। मेरे भाई सुन लो, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, व कराहियतुल मौत, और मौत को नापसंद करना, ये 2 बीमारियां जब मुसलमानों में आ गई हैं, ये वहन आ चुका है। जब वहन आ चुका है तो फिर दुश्मन के दिलों से हमारा रोब खत्म हो चुका है। कुल इनकान आबाउकुम, तो मामला बरअक्स था कि पहले रूह डाली गई, बाद में जिस्म बन गया था। रूहानी कुव्वत उनकी बहुत ज्यादा होगी कि एक तो उनका नाम ही रूहुल्लाह है, तो रूह पहले बनी, रूह पहले डाल दी गई, जिस्म बाद में बन गया था। और रूहानी कुव्वत इतनी कि वो मुर्दे के सामने खड़े हो जाते थे, कुम बिइज़्निल्लाह फरमाते थे, मुर्दा भी खड़ा हो जाता था, उसमें भी रूह पड़ जाती थी। मिट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारते थे, वो भी उड़ना शुरू कर देता था, उसमें भी रूह पड़ जाती थी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहानियत के मेअराज पे होंगे, और फिर जब दज्जाल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सामना होगा, तो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है फ़इज़ा रआहु अदुव्वुल्लाह, जब वो दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उसका आमना सामना होगा, ज़ाबा कमा यज़ूबुल माउ फिल मिल्ह, कमा यज़ूबुल मिल्हु फिल मा, वो पिघल जाएगा जिस तरह के नमक पानी में पिघल जाता है, जिस तरह के नमक पानी में ये पिघल जाएगा। ये बाकायदा मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं। अब वो पिघलना तो रूहानी कुव्वत के जरिए नहीं हो सकता, वो मादी कुव्वत के जरिए नहीं हो सकता, ये तो कोई रूहानी कुव्वत होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई तसर्रुफ ऐसा कर लेंगे कि वो नमक की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हत्ता लौ तरकहु लन ज़ाबा, यहां तक कि अगर अल्लाह ताला अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वैसे ही छोड़ दे तो खुद ही पिघल के हत्ता यहलिका, हलाक हो जाएगा, पिघल जाएगा, खुद ही हलाक हो जाएगा। लेकिन वलाकिन यक़्तुलुहुल्लाहु ताला बियद ईसा, लेकिन अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से उसको कत्ल करवाएगा।
تو وہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی مادی قوت ہوگی بھی تو فتح مادی قوت کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، بلکہ اس روحانی قوت کی بنیاد پہ ہوگی جس کی معراج پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ لہذا انسان کے جسم میں اگر روحانیت اور مادیت کی کشمکش نظر آتی ہے تو اس میں روحانیت کمزور ہو چکی ہے، مادیت غالب آ چکی ہے۔ جب انسان چونکہ دارالخلافہ ہے اس پوری کائنات کے لیے، یہاں پہ مادیت نے غلبہ کر لیا تو باہر بھی ہمیں مادیت کا غلبہ نظر آتا ہے، اور اگر انسانی جسم کے اندر روحانیت کا غلبہ ہو گیا تو پھر باہر کی دنیا میں بھی خود بخود روحانیت کا غلبہ ہو جائے گا، اور اسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں اب گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم انفرادی طور پہ شیطان، نفس اور مادیت کے اس خول سے نکل آئیں تو ہمیں خانقاہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ والوں کا دامن تھامنا پڑے گا، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں روحانیت غالب آ جائے، اسلام کو ایک مرتبہ پھر غلبہ حاصل ہو جائے، تو پھر اس کا بھی یہی حل ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ تو یقیناً جب اندر کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو پھر مادی قوتیں انسان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ وہن آ چکا ہے، دنیا کی محبت ہے، اہل و عیال کی محبت ہے، مال پیسے کی محبت ہے، اور موت کو ناپسند کرنے کا سلسلہ ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ جب تک ایک مسلمان کے لیے موت اس کی زندگی سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے تک وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ 14 صدیوں کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے موت سے ایسی محبت کی جیسے لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں، پھر مسلمان آگے بڑھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمان 313 تھے، کافر 1000 تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے، 8 تلواریں تھیں۔ 313 بندوں کے پاس 8 تلواریں تھی، یہ مادی طاقت تھی۔ ایک کافر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں ذرا ادھر سے ہو کے آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی اسلحے کی حالت کیا ہے۔ چنانچہ کافر ایسے دور سے پھرتا رہا اور پھر واپس چلا گیا، اور واپس جا کے کہنے لگا لوگوں سے کہ تعداد تو تھوڑی ہے، تعداد تو تھوڑی ہے، گھوڑے بھی صرف 2 نظر آتے ہیں، اسلحہ بھی بالکل کم نظر آتا ہے، اکثر تو خالی ہاتھ پھیر رہے ہیں، لیکن میں نے ان کو جو دیکھا مجھے یوں لگا جیسا یہ لوگ مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ اونٹوں پر سرخ موت کو لے کے آئے ہیں، سرخ موت کو لاد کے لے کے آئے ہیں مدینہ منورہ سے، گویا کہ موت کے ساتھ